اہلاً و سہلاً مرحبا۔ پاکستان اور سعودی عرب میں محبت، دوستی اور ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو گیا۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان تاریخی دورے پر آج کچھ دیر میں پہنچیں گے۔ اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ پاکستان کے حکمران اور عوام اپنے معزز مہمان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر مملکت عارف علوی میزبان بنیں گے۔ سعودی ولی عہد کی وزیر اعظم سے ون آن ون ملاقات ہوگی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجانی سے بھی ملیں گے۔ 20 ارب ڈالر کے تجارتی سرمایہ کاری کے معاہدے بھی ہوں گے۔ ولی عہد کی آمد سے پہلے 172 رکنی وفد نور خان ایئر بیس پہنچا، جس کی قیادت الباز نوبیر کر رہے ہیں۔ مرحبا 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 اہلا وسہلا مرحبا۔ سعودی عرب کے ولی عہد کے استقبال کے لیے پاکستان تیار ہے۔ اسلام آباد کو سجا دیا گیا۔ اہم شاہراہوں پر بڑے بڑے تصاویری بل بورڈز نصب کر دیے گئے۔ پاک سعودیہ پرچم لہرائے گئے۔ شاہی مہمان کو JF-17 تھنڈر فضائی سلامی پیش کی جائے گی۔ نور خان ایئر بیس پہنچنے پر وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد کا استقبال کریں گے۔ ون آن ون ملاقات ہوگی۔ شہزادہ محمد بن سلمان آرمی چیف اور چیئرمین سینٹ سے بھی ملیں گے۔ ولی عہد کی آمد سے پہلے 172 رکنی سعودی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ان کی قیادت الباز نوبیرک کر رہے ہیں۔ 2 روزہ دورے کے دوران 20 ارب ڈالر کی تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدے ہوں گے۔ سعودی وفد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری 111 بریگیڈ نبھائے گی۔ ایئر ڈیفنس کی ایک بیٹری فضائی نگرانی کرے گی۔ 12,000 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ریڈ زون کو مکمل سیل کر دیا گیا ہے۔ کل اسلام آباد میں عام تعطیل کی جائے گی۔ سعودی ولی عہد کو تحفے میں دینے کے لیے پاکستانی آرٹسٹ رابعہ ذاکر نے پورٹریٹ تیار کر لیا ہے اور پشاور کے چاچا نور الدین نے کپتان چپل کے 4 جوڑے تیار کیے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ 2 سال میں 7 ارب اور 3 سال میں 12 ارب ڈالر کے معاہدے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اور سعودی ولی عہد کی سربراہی میں معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ رابطہ کونسل قائم کی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں سعودی عرب کی گزشتہ 10 برس میں یہ پاکستان میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ This is the time to invest in the country. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے دورے سے متعلق کیا کیا تیاریاں کی گئی ہیں، 2 دن میں ان کی کیا کیا مصروفیات ہوں گی، اس بارے میں مزید تفصیلات معلوم کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ نیوز شہباز احمد۔ شہباز احمد، بتائیے گا کہ 2 روزہ دورہ ہے سعودی ولی عہد کا، کیا کیا مصروفیات ہیں اس 2 روزہ دورے کے دوران؟ جی بالکل، پاکستان جو بالکل تیار ہے سعودی ولی عہد کے استقبال کے لیے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ 6 بجے کا وقت بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی عہد اپنے وفد کے ہمراہ جو ہیں وہ نور خان ایئر بیس پہنچیں گے، جہاں پر سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اور وفاقی کابینہ ارکان جو ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے۔ پرتپاک استقبال وہاں پر ان کو کیا جائے گا، 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، گارڈ آف آنر ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان ان کو اپنے ساتھ جو ہے نور خان ایئر بیس سے وزیر اعظم ہاؤس میں لے کر آئیں گے، جہاں پر سب سے پہلے کی پہلی ملاقات جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے ون آن ون ہوگی۔ اس کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ ملاقات جو ہے وہ جاری رہے گی۔ اس کے بعد جو ہے وفودی سطح پر مذاکرات کا عمل شروع ہوگا، جس میں پاکستانی وزراء اور سعودی وزراء جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے اور وزارتوں میں تعاون کے حوالے سے جو ہے بات چیت ہوگی۔ مختلف MOUs پر دستخط بھی آج ہی متوقع ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں ہی ایک پرتکلف عشائیہ جو ہے وہ شاہی مہمان کے اعزاز میں دیا جائے گا۔ اور کل کی جو مصروفیات ہیں، آج وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے، جبکہ کل ایوان صدر جو ہے وہ شاہی مہمان کا میزبان ہوگا، جہاں پر سب سے پہلے جو صبح جو ہے وہ ایک تو ایوان صدر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ سعودی وفد کا اور سعودی ولی عہد کا جو وہ استقبال کریں گے۔ وہاں پر کافی پروگرام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے اور سعودی ولی عہد کو جو ہے پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے بھی جو ہے نوازا جائے گا۔ اور کل ایوان صدر میں ایک دہرانے کا بھی جو اہتمام کیا گیا ہے، ایوان صدر میں دہرانے کا بھی جو ہے وہ اہتمام کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا شہباز احمد، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ آپ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ سعودی ولی عہد کی آمد پر
पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को सऊदी शहजादे के दौरे की जामे तशहीर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। DGP NAC जमाल शाह ने इजलास में बताया कि सऊदी वली अहद की आमद के मौके पर सकाफती ताइफे और मौसीकी का एहतमाम भी किया गया है। आपको एक दफ़ा फिर यहाँ पर इंतजामात के हवाले से बताते चले। आपको यहाँ पर बताएं कि सऊदी वली अहद की आमद पर इंतजामात का जायजा लेने के लिए आला सतह का इजलास हुआ है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को सऊदी शहजादे के दौरे की जामे तशहीर से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई है। DGP NCA जमाल शाह ने इजलास में बताया कि सऊदी वली अहद की आमद के मौके पर सकाफती ताइफे और मौसीकी का इंतजाम भी किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की मदद की। सऊदी अरब के साथ दो तरफा ताल्लुकात चाहते हैं। सऊदी अरब के पास सरमाया और तेल के ज़खायर हैं। पाकिस्तान के पास हुनरमंद अफरादी कुव्वत और टेक्नोलॉजी है। मौशी इस्लाहात से जल्द मसाइल पर काबू पा लेंगे। मौशी बहरान से निमटने के लिए चीन, सऊदी अरब और UAE ने ताउन किया। सऊदी अरब यमन और ईरान के दरमियान सालसी का किरदार अदा करेंगे। हुकूमत स्टेटस को खत्म करने के लिए इकदाम कर रही है। माजी में इंतहा कर्जे लिए गए, इदारों को तबाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान और मेरा करप्शन के खिलाफ मौक़िफ़ एक ही है। वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर का कहना है कि सऊदी वली अहद के दौरे से दोनों मुमालिक के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से दोनों मुमालिक के दरमियान नए इक्तिसादी बाब का आगाज होगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर खजाना ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब मुतबादिल तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। पाकिस्तान में तवानाई की मद में दरामदात सबसे ज्यादा है। सऊदी तवानाई कंपनी में पाकिस्तानी दिलचस्पी लेना खुशाइंद है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं सरमायाकारी उसके अंदर देखी जा रही है। मईशत की तरक्की में भी इसके अंदर से मदद हासिल होगी। सऊदी जो सरमायाकार हैं उनको भी मौके मिलेंगे और दोनों ममालिक का जो माशी रिश्ता है वो भी मजबूत होगा। तवानाई के बगैर मईशत चल नहीं सकती, तो जाहिर है वो पूरी मईशत के ऊपर उसका असर होता है। एनर्जी की मसनूआत, पेट्रोलियम की मसनूआत जो है अगर वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाएंगी, खाम माल बाहर से आएगा और उसके बाद उसकी वैल्यूडेशन यहाँ पर की जाएगी, तो उससे हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसके अंदर बहुत बेहतरी नजर आएगी और जो हमारा देरीना मसला है उसमें कमी पैदा करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा। तो उनका पाकिस्तान के अंदर एक इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी लेना एक बड़ी खुशाइंद बात है। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर शमसी तवानाई के ज़रिए पूरी की जाएँ, तो हमारा जो पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स की इम्पोर्ट है उसमें भी मदद की जा सकती है। माहौलियात के लिहाज से भी बेहतर होता है। अब जो इनकी कीमत हो गई है वो भी उस लेवल के ऊपर आ चुकी है कि वो मुकाबला करते हैं दूसरे जो ट्रेडिशनल जो होती थी सोर्सेज तवानाई की उससे। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तानियों ने सोशल मीडिया पर मोहम्मद बिन सलमान खुश आमदेद कहने में मसरूफ़ हैं। सारिफीन ने मुश्किल माशी हालात में पाकिस्तान की मदद पर वली अहद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। सोशल मीडिया सार्फिन अपने अपने अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान को खुशामदीद कहने लगे। सार्फिन ने लिखा, वली अहद का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान नए दौर का आगाज है। पाकिस्तानियों ने मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तानी मईशत के लिए नेक शगुन करार दे दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तारीख क़याम पाकिस्तान से भी पुरानी है। वली अहद सऊद बिन अब्दुल अजीज ने 1940 में अपने 5 भाइयों के हमरा कराची का दौरा किया और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दोस्ती का पहला मुआहदा 1951 में शाह इब्ने सऊद ने किया। दुनिया के कम उम्र तरीन वजीर दिफा बनने का एहसास हासिल करने वाले सऊदी वली अहद अपने विजन 2030 के बायस दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। मोहम्मद बिन सलमान की बदौलत सऊदी खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस, कारोबार, फौज और खेलों में शमूलियत की इजाजत मिली। सऊदी शहजादे दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग और फ्रांसीसी बादशाह लुई के किले शाटिफ के मालिक भी हैं।
सऊदी वली अहद 31 अगस्त 1985 को दारुल हुकूमत रियाद में पैदा हुए। कानून की डिग्री हासिल की। 30 बरस की उम्र में दुनिया के कम उम्र तरीन वजीर दिफा बने। शाह सलमान मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 की वजह से दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। सऊदी खवातीन को ड्राइविंग लाइसेंस, कारोबार, फौज और खेलों में शमूलियत की इजाजत मिली। 40 साल बाद सिनेमा घर खुले। मर्दों खवातीन म्यूजिक कॉन्सर्ट से लुत्फानंदोज होने लगे। मैराथन रेस भी होने लगी। दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग फ्रांस के बादशाह लुई के किले शाटेब के भी मोहम्मद बिन सलमान मालिक हैं। आलमी रहनुमाओं का ख्याल है कि मोहम्मद बिन सलमान मुस्तकबिल सऊदी अरब के ज़हीन, कामयाब, बहादुर और फैसला साज नौजवान बादशाह साबित होंगे। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, जिनको हार्ट अटैक हुआ या नहीं, एक बार फिर ट्रूप आई टेस्ट किया जाएगा। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद कहते हैं कि नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अयादत के लिए अस्पताल पहुंचे। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि नवाज शरीफ को कमर में तकलीफ है, कारकुन उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। नवाज शरीफ का जिना अस्पताल में तीसरा रोज। हार्ट अटैक हुआ या नहीं, एक बार फिर ट्रूप आई टेस्ट किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड ने साबिक वजीर आजम की सर्विसेज अस्पताल PIC और लंदन में होने वाले इलाज की तफसीलात तलब कर ली। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद का कहना है कि नवाज शरीफ की शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। हम पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम तिब्बी सहूलियात बेहतरीन मुहैया कर रहे हैं। रूटीन में उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG डेली बुनियादों पर हो रही है। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आरिफ तजम्मुल का कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, उनकी अद्वियात और खुराक में रद्दोबदल किया गया है। अगर कोई ऐसा टेस्ट होगा जिस तरह मैंने पहले दिन कहा था कि जो बाहर से करवाने की ज़रूरत पड़ी तो वो जिना अस्पताल की इंतज़ामिया खुद करवाएगी, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट और इलाज की सहूलत जिना हॉस्पिटल में मुयस्सर है। प्रोफेसर आरिफ तजम्मुल का कहना था कि कल तक मेडिकल बोर्ड की खत्मी राय आने का इम्कान है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की अयादत के लिए उनके छोटे भाई और बेटी मरियम नवाज जिना अस्पताल आए। शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ को कमर में तकलीफ है, कमर दर्द की वजह से बेल्ट बांध रखी है, कारकुन उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। इस हवाले से डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार भी किया है। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जो है वो मालूम करेंगे। मियां नवीद, बताइएगा आपके पास मज़ीद तफसीलात क्या है? डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तबीयत है, जो सेहत है, उसके बारे में तशवीश का इजहार किया है। उनकी बेटी मरियम नवाज भी जो है वहाँ पर अयादत के लिए पहुँची हैं, मज़ीद बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मरियम नवाज़ अपने वालिद नवाज शरीफ से मुलाकात में मसरूफ़ हैं और मेरे यकम में देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है और शायद अब मुलाकात के बाद वो शायद वापस जा रही हैं। और इससे पहले मियां शहबाज शरीफ जो वो भी मुलाकात के लिए आए थे और यहाँ पर उन्होंने ख़ुसूसी तौर पर ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ की जाए, उनको दुआ की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि आज जो ख़ास तौर पर जो ट्रूप आई टेस्ट जो है वो डॉक्टर्स की जानिब से मियां नवाज शरीफ का टेस्ट किया गया है। इस हवाले से मैं बता दूं कि ट्रूप आई टेस्ट तिब्बी माहिरीन माहिर अमराज दिल का ये कहना है कि ये इसलिए किया जाता है कि कोई भी कार्डिक पेशेंट है तो उसकी सूरत हाल जांचने के लिए कि आया उनको हार्ट अटैक हुआ या नहीं, इसलिए ट्रूप आई टेस्ट जो है वो आज किया जा रहा है। और साथ साथ मैं ये भी बता दूँ कि जो एक किट है वो लोकल परचेज़ के ज़रिए ये किट खरीदी गई है, लेकिन यहाँ पर आज दीगर जो है वो मामलात में मैं अगर आपको थोड़ा सा तफसीली बताता हूँ कि यहाँ पर प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें उन्होंने बताया कि सर्विसेज हॉस्पिटल और उसके साथ साथ PIC का जो रिकॉर्ड था वो फ्राहम कर दिया गया है। और उसके बाद अब जो है वो मेडिकल बोर्ड आज भी मियां नवाज शरीफ का तिब्बी मायना कर रहा है। इसके बाद जो खुसूसी तौर पर जो है वो नया बोर्ड जो बनाया गया वो बैठेगा, तमाम रिपोर्ट्स देखेगा और उसके बाद हतमी फैसला होपफुली कहा जा रहा है कि कल तक आ सकता है कि एक नई रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। और उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूंगा कारकुनों के कि यहाँ पर एक दर्जनों के हिसाब से तादाद मौजूद है। जो ही यहाँ कारकुनों के दर्जन से ज़्यादा तादाद वहाँ पर मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद, हमें तफसीलात से आगाह करने का। न्यूज़ में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, उससे पहले अपडेट्स।
वेलकम बैक। पाकिस्तान दुश्मनी में भारतीय मीडिया होश खो बैठा। अब्दुल रशीद गाजी को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अब्दुल रशीद गाजी ने 2008 में मसूद अजहर के गिरोह में शमूलियत इख्तियार की, जबकि अफगान तालिबान ने अब्दुल रशीद गाजी को ट्रेनिंग फराहम की। भारतीय फोर्सेज ने अब्दुल रशीद गाजी की रिहाइश का मालूम कर ली। अब्दुल रशीद गाजी ने ही आदिल अहमद डार को बम बनाने की ट्रेनिंग दी। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल रशीद गाजी 2007 के लाल मस्जिद ऑपरेशन में जाँ बहक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी खारजा तहमीना जंजुआ की अफ्रीकी सफीरों को ब्रीफिंग, पुलवामा हमले से मुतालिक आगाह किया। तहमीना जंजुआ कहती हैं भारत का पुलवामा वाक़े पर बगैर तस्दीक के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। अंधी मोदी सरकार अवाम को गुमराह न करे। भारत के अंदर से भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। पुलवामा ड्रामा बेनकाब, मोदी सरकार के साजिशी गुब्बारे से हवा निकल गई। अपने ही फौजियों को मारने पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस निकली। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। सेक्रेटरी खारजा ने अफ्रीकी सफीरों को ब्रीफिंग देते हुए पुलवामा हमले से मुतालिक आगाह किया। तहमीना जंजुआ ने कहा कि पुलवामा वाक़े पर बगैर तस्दीक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं। पुलवामा ड्रामा, भारत के अंदर से भी सवालात उठने लगे। भारतीय अखबार के मुताबिक मुबैना खुदकुश हमलावर आदिल डार जेर हिरासत था तो हमला किसने किया? अगर आदिल डार फरार हो गया था तो भारतीय फोर्सेस खामोश क्यों रही? हमले का मास्टरमाइंड कौन था? भारतीय एंकर्स और मोदी सरकार के मुतज़ाद बयानात ने भी कई सवालात को जन्म देना शुरू कर दिया। हकीकत पसंद भारतीय तज्जियाकार कहने लगे नाउमीद और अंधी मोदी सरकार सर्जिकल स्ट्राइक और ख्याली कार्रवाइयों को मजहबी रंग देकर भारतीय अवाम को गुमराह कर रही है। और आपको बताएं कि प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वाले मोदी खुद आलमी तनहाई का शिकार हो रहे हैं। भारत का कोई दोस्त नहीं रहा, जबकि पाकिस्तान सिफारती सतह पर दोस्तों में कई गुना इजाफा कर चुका है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको एक दफा फिर यहां पर बताएं कि प्रोफेसर अशोक स्वाइन मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वाले मोदी खुद आलमी तनहाई का शिकार हैं। भारत आलमी तनाही का शिकार है। प्रोफेसर अशोक स्वाइन ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वाइन का कहना है कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने वाले मोदी खुद आलमी तनाही का शिकार हैं। भारत का कोई दोस्त नहीं, जबकि पाकिस्तान सिफारती सतह पर दोस्तों में कई गुना इजाफा कर चुका है। अशोक स्वाइन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में माओवादी बागियों के हाथों मारे जाने वाले जवानों पर मोदी क्यों खामोश रहते हैं? 2014 से अब तक छत्तीसगढ़ में 362 फौजी मारे गए, पर मोदी खामोश रहे। और क्रिकेट को सियासत से जोड़ना भारत की पुरानी रिवायत। पड़ोसी मुल्क की एक और ओछी हरकत, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने इमरान खान की तस्वीर छुपा दी। कप्तान के पोर्ट्रेट पर कवर डाल दिया गया। मुंबई में वाक़ क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया जो 1933 में कायम हुआ, क्रिकेट के कई बड़े नाम इस क्लब से वाबस्ता हैं, लेकिन भारत से वहां पाकिस्तानी वजीर आजम, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और अजीम ऑलराउंडर इमरान खान की तस्वीर बर्दाश्त न हुई। भारत की एक और ऊंची हरकत, क्लब ऑफ क्रिकेट इंडिया से इमरान खान की तस्वीर पर कवर डाल दिया गया। इस तस्वीर को छुपा दिया गया। और आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज और हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल है। जम्मू में हमलों के डर से 2000 कश्मीरियों ने मस्जिद में पनाह ले रखी है। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक कहते हैं कि कश्मीरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उधर मकबूजा कश्मीर की इंतजामिया ने हुर्रियत रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। जम्मू में हमलों के डर से 2000 कश्मीरियों ने मस्जिद में पनाह ले रखी है। पता है कि हमें कितना जुल्म हो रहा है यहाँ। हम गेट स्टूडेंट से, हम यहाँ गेट का एग्जाम देने आए थे। मकबूजा कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदों के हमलों के खिलाफ शटडाउन हड़ताल।
हिंदू इंतहा पसंद पुलवामा वाक़े के बाद आपे से बाहर हो गए। दोहराधन बिहार चंडीगढ़ में कश्मीरी तालिबे इल्मों पर तशद्दुद और जान से मारने की धमकियां दी। हुर्रियत रहनुमा अमीर वाइस उमर फारूक का कहना है कश्मीरियों की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। तालिबे इल्मों मजदूरों पर तशद्दुद और कश्मीरियों की जायदादें जलाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। और मजीद खबरें शामिल करें। FIA ने CSS के पर्चे आउट होने का मुअम्मा हल कर लिया। FIA ने 2 सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। FIA ने लाहौर को कचरा लारेंस रोड पर छापा मारकर सरकारी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर मुलविस दूसरे मुलजिम को भी हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद लाखों रुपए के वज़ इम्तिहान से चंद घंटे पहले पर्चे आउट करते थे। इसकी भी मजीद आपको डिटेल्स देंगे नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अवैस। जी आगाह कीजिएगा। कौम का मुस्तकबिल पैसों के बस बेचने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आ चुका है। FIA ने CSS के पर्चे आउट होने वाले जो मामला था वो हल कर लिया है। CS अफसरान ही 2 पर्चे आउट करने के मामले में निकले, जबकि FIA ने 2 सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए के US इम्तिहान से चंद घंटे पहले पर्चा आउट कर दिया जाता था। FIA को CSS के पर्चे लीक होने की शिकायत मौसूल हुई थी, तमाम FIA ने लाहौर में छापा मारकर एक सरकारी अफसर जबकि 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम की निशानदेही पर मजीद दूसरे मुलजमान को भी हिरासत में लिया जा सकता है। तफ्तीश में FIA ने CSS, जेल खाना जात और दीगर महकमों के अफसरान के मुलव्वस होने का भी इंकशाफ किया, जबकि उनसे मजीद तहकीकात भी जारी है। मुलजिम से FIA की तहकीकात जारी है, ताहम मजीद गिरफ्तारियां भी होने का इम्कान है। जी शुक्रिया वैस तफसीलात से आगाह करने के लिए। सुपीरियर स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल सियासी और समाजी शख्सियात, फनकारों, तलबा और तालिबात और असासा समेत फैमिलीज की बड़ी तादाद शरीक है। फेस्टिवल में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्दिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर की सकाफत के रंग बिखर गए। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी, एथलीट और खेलों समेत मुख्तलिफ दौर जारी है। फेस्टिवल में 50 से ज्यादा मुख्तलिफ अशिया समेत खाबों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। मजीद बात भी करेंगे इस हवाले से। आपको बताएं कि लाहौर में स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल नुमाइंदा न्यूज़ मायरा हाशमी तफसीलात से आगाह करेंगी। जी मायरा। जी बिल्कुल, सुपीरियर का सालाना स्पोर्ट्स कल्चर फेस्टिवल का आगाज हुआ और रंगारंग तबाही मची हुई थी। यहाँ पर तमाम सियासी व समाजी शख्सियात समेत तलबा और फैमिलीज की बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की। बहुत ही अच्छा माहौल था। यहाँ पर स्पोर्ट्स भी हुई और डिफरेंट खेल भी यहाँ पर खेले गए। साथ ही साथ खाने के 50 डिफरेंट स्टॉल्स लगाए गए। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमारे पाकिस्तान की सकाफत को प्रमोट किया गया और 5 सूबों की रंगारंग ड्रेसेस जो है वो ज़ेबतन किए हुए थे लड़कियों ने और बहुत ही अच्छा माहौल था। इनसे पूछती और इनसे जानती हूँ कि इन्होंने किस कल्चर को प्रमोट किया और किस तरह एंजॉय किया आज आपने। हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। यहाँ पे कॉन्सर्ट के लिए सिंगर भी आए हुए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा हम इंजॉय कर रहे हैं, हुडिंग कर रहे हैं सब, और खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंतजाम है। गोलगप्पे का स्टॉल भी लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा। आपने क्या खाया? गोलगप्पे। और अगर मेरा कैमरामैन मेहरान आपको यहाँ पर दिखाए कि भटूरे भी निकाले जा रहे हैं, साथ ही साथ अब पराठे बनने जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तमाम तलबा यहाँ पर आ रहे हैं और मज़े मज़े के चटपटे खाने खाकर इस फेस्टिवल को और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हर खाना ही बहुत ज़्यादा मज़े का है। जौन सा भी खाए, जौन सी चीज़ खाए या कोई भी इंजॉयमेंट करे वही कम है, क्योंकि लाहौरियों के लिए इंजॉय ही सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि हर कोई भी जो है वो कोई भी त्यौहार हो या कोई भी जगह लाहौरी जो है वो एंजॉयमेंट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और अब बात हो जाए कुछ मौसम की। मुल्क में बारिश देने वाला नया सिस्टम दाखिल हो चुका है। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब समेत बलाई पहाड़ी इलाकों में कहीं पर बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों से मुमकिन नुकसानात के पेश नज़र PDMA ने मालाकंड में अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में आज भी सुरमई रुत का राज है और घने बादल छाए हुए हैं, जबकि ठंडी हवा भी चल रही है। शहर इक़्तिदार के मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयशा शुएब। जी बिल्कुल, शहर बेमिसाल में आज फिर से बादलों का राज बरकरार है। सुबह से ही सूरज और बादलों की आंख मचोली भी जारी है। इसके साथ साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिनकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। अगर महकमा मौसमियात की बात करते चलें तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड डिवीजन और दीगर इलाकों में आज बारिशों का इम्कान है। इसके साथ साथ पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी की भी पेशनगोई की गई है। जबकि अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत आज 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ छुट्टी का दिन भी है और मौसम काफी सुहाना है, बादल भी हैं और फलक पर
پر جھومتے بادلوں نے اسلام آباد کے نظاروں کو اور بھی چار چاند لگا دیے. اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں. اسلام آباد کے شہری اس موسم سے بھرپور لطف اٹھائیں گے. نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے نیو کے ساتھ رہیے.